Sir, good afternoon. Good afternoon. We'll wait for a minute. In the meantime, switch on your camera and then we will get started. Yeah, please switch on your cameras. We will get started then. Yeah. Mahima, Mahavish, please switch on your cameras, beta. Mahavish? Yeah, okay. Good. So we discussed the capacitance chapter yesterday. We will do a quick revision of the currents chapter today. Okay, the third chapter, electric current. Okay. So in a conductor, the electrons are flowing as shown in the figure. Mark the direction of the current. Tell me, the current will flow from where to where? Beta video off mat kariye. Tell me from where the current will flow. Please switch on your videos. बेटा सारा टाइम ना इसमें वीडियोस में हमारा वेस्ट हो जाता है. लेट्स नॉट डू दैट. कीप योर वीडियोस ऑन. किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो? इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट टू लेफ्ट, राइट? This is really basic. Okay, now if a charge of 10 coulomb flows through a wire in 5 seconds, what is the current in the wire? Really basic questions. I mean, they may not even come in the exam. They're so basic. What is the current in the wire? एक वायर है, उसके क्रॉस सेक्शन में से 10 कूलम करंट चला गया in 5 seconds. तो क्या 2 ampere. 10 by 5, 2 ampere. Okay, really simple question. Okay, I'll leave this question because we are doing a... So what is Ohm's law? Very quickly tell me the Ohm's law. Ohm's law gives the relationship between the voltage and the current. Okay, so what is it? It states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided temperature and other conditions remain constant. ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं? V is equal to IR. Okay, R is the resistance. This is the constant of proportionality and it's called the resistance. ठीक है, तो ये important definition है, आपको जरूर आनी चाहिए. Is it a universal law? Is it always applicable? Ohm's law? Is it always applicable? No, it is not. Can you tell me when it is not applicable? Give me one example when it is not applicable.
कीप योर वीडियोस ऑन बेटा, फिर ऑफ हो गए हैं सारे वीडियोस। व्हेन इज इट नॉट एप्लीकेबल? ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होता, एक एग्जांपल बताइए। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने कहा है कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्या था वो? सेमीकंडक्टर्स। इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है, जो हम यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, हमें ये याद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं उसमें काफी हद तक ये फॉलो होता है। सो इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? Is current vector? No idea? Current is scalar. याद रखिए, करंट स्केलर है, चार्ज स्केलर है। अभी तो जाइएगा पढ़ाने के बजे ना। और करंट डेंसिटी क्या है? यहाँ और यहाँ पे क्लास है तो हाँ बेटा, करंट डेंसिटी स्केलर है वेक्टर है, बताइए। क्या हुआ? प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलता है आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। कीप योर वीडियोस ऑन। सोनाली हैज एक्चुअली लेफ्ट द क्लास। वीडियो ऑन रखिए। बेटा इस पेस पे हम चलेंगे ना तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां तक तो हम पहुंचेंगे भी नहीं रिवीजन में। बताइए, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है स्केलर होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, इतने इजी कि बोर्ड में आएंगे भी नहीं। करंट स्केलर होता है, करंट डेंसिटी जो है जिसको हम जे से दिखाते हैं वो वेक्टर होती है, फील्ड वेक्टर होती है, पोटेंशियल स्केलर होता है। ये बेसिक चीजें याद रखनी जरूरी है। Okay, I will skip these very simple questions now. Drift velocity क्या होती है? Can you quickly tell me? Drift velocity क्या होती है? क्या हो गया आज? No interest? Gajav has also left. What is happening? बेटा कैसे तैयारी होगी आने वाले एग्जाम्स की? महावीश, महिमा, Sir, drift velocity जो electron moves with an average velocity which is independent of time, although the electron is accelerated. इसके Yes. जो phenomena होता है ये drift velocity maybe. ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन कैसे याद रखेंगे? इसका एक्सप्रेशन जो है वो है द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू द फील्ड इनसाइड द वायर, राइट? दिस विल गिव अस द फोर्स अपॉन the mass will give us the acceleration into the relaxation time, means the average time it moves before making the next collision. So you know v is equal to u plus at होता है at होता है ना, तो वही वाला फॉर्मूला है एक्चुअली, राइट? सो याद रखना आसान है, एक्सेलरेशन बाय मास,
force by mass acceleration है, into relaxation time and a minus sign to indicate that the charge is negative to the field. ये field से उल्टा जा रहा है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि इस वेलोसिटी की इस फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इजी हो जाता है याद रखना अगर समझ के याद रखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द मोबिलिटी? So the magnitude of the drift velocity per unit electric field. यस, ठीक है ना। तो उसी से हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी मिल जाता है कि ई से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगा बस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स मैं छोड़ देता हूं थोड़े से, क्योंकि इफ यू रिमेंबर थिंग्स, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और series combination I have just listed here, but you would definitely remember. ठीक है, बस अब सेल्स का देख लेते हैं। सेल्स का क्या होता है? सेल्स में अगर सीरीज में है तो ईएमएफ भी ऐड होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होते हैं, बिल्कुल सिंपल केस होता है। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल में होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना, जो पैरेलल के फॉर्मूले से है। उसके बाद ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जो हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव ईएमएफ, व्हिच इज इफेक्टिव ईएमएफ बाय इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड देन वी जस्ट हैव टू कीप एडिंग द सेम रेशियो। दिस इज व्हेन इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो ये हमको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा ईएमएफ वाले में ट्रिक है। किरचॉफ के कितने लॉज हैं? व्हाट आर दोस? जस्ट टेल मी द नेम्स। Junction or loop. Junction or loop? Yeah, okay. Just a second. Give me one. Give me 1 minute. I'm sending the link to the principal, ma'am. Just hold on. Okay. Yeah, okay. So let's continue. ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, राइट? I will not describe the entire thing if you don't have any doubts in it, right? इसमें important part क्या होता है जो हमें याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं तो हम इसको एक बैलेंस्ड कंडीशन में लाते हैं, राइट? What is the balanced condition? That the current through this arm is 0. और ये कब अचीव होती है? जब रेशियो ऑफ दिस resistor by this resistor is same as ratio of this resistor. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Switch on the video, students. Ambassador sir, switch on नहीं है, आप बैठे हो. Even I can't see you. All the videos are off. Okay. Yeah. Neeraj ji. हाँ, I'm just doing that.
Mahima, Arun, switch on the videos, everyone. Neeraj ji, you continue. हाँ, okay. You continue. I don't need your video. The way you are showing the screen and all, you continue. Yeah, sure. ठीक है, तो अभी क्या है? Mahima and Arun, switch on your videos. महबीश, बेटा ये नीरज सर के क्लास में आप इतने कम क्यों आते हो? मैम आई एम कमिंग बट समटाइम्स माय जब मैम फोन के बैठी तब ऐसा होता है सम केसेस, बट मैं तो रेगुलर रहती हूँ ज्यादातर क्लासेस में। अभी किसने लेफ्ट किया? 3 बच्चे थे ना? Somebody has left. आई डोंट Some Kasana, अरुण कसाना मैडम। अरुण कसाना, ठीक है। अंबास्ता जी Yes. नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है मैडम। महिमा इज नॉट देयर आई गेस। ऑन करके ऐसे ही है या यू कैन हियर मी महिमा? व्हाई द वीडियो इज ऑफ बेटा? महिमा आई एम टॉकिंग टू यू। हेलो, कैन यू हियर मी महिमा? महिमा प्लीज No. अनम्यूट एंड स्पीक। हाँ, अनम्यूट करो पहले बेटा। महिमा, एम आई ऑडिबल? नो, शी इज अंबास्ता नॉट। जी, यस मैडम। I think she can't hear me. अंबास्ता जी, ये बच्चे आप ही sir. के बच्चे हैं? ये 2 बच्चे, एक तो लेफ्ट हो गया, अब तो 2 रह गए, एक को सुनाई नहीं दे रहा है। Why that? अरुण कसाना बी का है मैडम। अभी हो, सेक्शन आप बी ही का का। बच्चा है ना? पिछले हाँ, साल बच्चा का हमारे ही बच्चा है, है। बिल्कुल। तो ये बच्चे हाँ। यहाँ पे क्यों कम आते हैं इतना? अब आपकी क्लास में मैडम मैंने सारे बच्चे थे। नहीं, अब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश किया। मैंने पूछा 1-2 बच्चों से, तो बता रहे थे वो कि अब वो इनका एक जनरल होता है कि सर मैं किसी पर्टिकुलरली से स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो फिर वो बताते हैं कि नेट नहीं है सर, तो नेट नहीं लगा, हम ट्राई कर रहे थे, यही जवाब होता है उनका। कोई क्लियर जवाब नहीं होता, कोई अपना फॉल्ट नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, नेट के ऊपर टाल देते हैं वो। वीक नेट ये है। अब मैंने कई बार जो है सो नीरज जी के रिपीट। क्लास में नेट वीक है, बाकी क्लासेस में नहीं है ना? ऐसा ही होगा फिर, है ना? मैंने कई अब ऐसे ही देखिए आप अनुभव मुझे अभी आफ्टर क्लास आप मुझे कॉल करिएगा। व्हाट अबाउट अनुभा? अनुभा हैज जस्ट जॉइंड। हाँ, जस्ट ज्वाइन। अनुभा, स्विच ऑन योर वीडियो। यस मैम। आई कांट सी यू बेटा। मैम एक मिनट मैम। बेटा क्लास तो शायद 12:10 का था, अभी तो 12:29 है। अभी सौरभ इज ऑल्सो कमिंग। आपको टाइमिंग नहीं पता? आपको टाइम टेबल नहीं मिला है? अनुभा, यस मैम। फिर बेटा आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो? मैम मैं कुछ काम में लग गई थी मैम। काम नहीं करना है, क्लास 12 है, बोर्ड है, ये Yes, ma'am. सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक जी है, मैम। कल से मैं रोज आऊंगी। नीरज जी के क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट चाहिए मुझे। वीडियो ऑन करके बैठेंगे। सौरभ, कैन यू हियर मी? सौरभ, यस मैम। अभी आप 12:30 में कैसे ऑन आप आ रहे हो? 12:10 का क्लास था, यू आर 20 मिनट्स लेट। व्हाई? बताइए बेटा। सॉरी मैम, कल से ऑन टाइम आ जाऊंगा। एकदम। और बाकी बच्चों को बोलिएगा
कल से हर एक क्लास में मैं रहूंगी। नीरज जी के क्लास में मुझे हर एक बच्चा चाहिए, नहीं तो फिर मैं एडमिट कार्ड नहीं दूंगी। आई थिंक आई एम क्लियर एंड ऑडिबल टू एवरीवन। यहाँ पे 3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, महबीश, अनुभा एंड सौरभ। अनुभा, सौरभ, आप लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया। वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, जो आपके इंटरनल मार्क्स है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड फ्रॉम टुमारो बी ऑन टाइम। और बाकी बच्चों को मैसेज कर दीजिएगा आज ग्रुप में, बोलना मैम ने बोला है कल से हर एक क्लास में मैं होंगी और एवरीबडी शुड बी ऑनलाइन ऑन टाइम। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस ma'am. सौरभ, Yes, ma'am. मैं भी सुनाई दिया बेटा? बता Ma'am. देंगे सबको। नीरज जी कंटिन्यू। Thank you, ma'am. So in the meter bridge, we use a 100 centimeter long wire on one side of uniform resistance. Okay. So इसमें using the Wheatstone bridge, we directly get the formula, right? What is the formula? That R by S, right? This by this is same as this by 100 minus L1. ठीक है ना? From this we will use this one as the unknown resistant and S as the standard resistance. Okay, and we can calculate the value of R. Okay, इसी चीज को आप यहां से हटाकर यहां लिख सकते हैं, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ओके, let's just do this very basic question. Which of the following is a good choice of standard resistance in a meter bridge to measure a resistance which is likely to be 10 ohms? जो हमारा R है, जो हमें मेजर करना है, वो हमें लगता है कि 10 ohms के आसपास कोई वैल्यू है। ठीक है, यदि ऐसा है तो जो हमें S चूज करना है वो किस साइज का होना चाहिए? बताइए। बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, या काफी बड़ा होना चाहिए, या कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो? What do you think? कौन से प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? How would we answer this question? See, it should be 10 ohms. If we are trying to measure a resistance which is close to 10 ohms, this is the better choice. It need not exactly be the same. That's not the point here. Okay, what is the point? That closer the standard resistance is to the resistance being measured, then the balance point will come towards the center of the meter scale. Okay, which will reduce our errors. Okay, so this is a question that you should know. Okay, potentiometer के क्या-क्या uses possible हैं? सर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से वीडियो आ गए होंगे उसके ऊपर, है ना? अभी दिख रहा है? नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। हाँ दिख तो रहा है सर। पहले हो सकता है उनको वीडियोस दिख रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए मैंने हटा दिए हैं अपने स्क्रीन पे से। अब बताइए। But the question is clearly been appeared here. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। हाँ तो बताइए, पोटेंशियोमीटर किस किस काम में आता है? सर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं हम यूज, लेकिन उसके लिए तो हम वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं ना।
राइट। तो पोटेंशियोमीटर का ज्यादा यूज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम क्या मेजर करने के लिए इसका यूज करेंगे? कर सकते हैं, आंसर आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट आंसर नहीं है। पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ईएमएफ जो है हम वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। और ईएमएफ से रिलेटेड दूसरी सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो ईएमएफ होती है उसकी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सेल की जो हमें पता होनी चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो जो है ना, ये दो मेन यूजेस हैं। हम इससे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बट वो हम और केसेस में भी मेजर कर पाते हैं, बट विद वेरी वेरी स्मॉल एरर्स। लेकिन जब बात आती है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की, वो हम यूजिंग अ वोल्ट मीटर इजिली बहुत ही हाई एक्यूरेसी पे कभी मेजर नहीं कर पाएंगे, तो वी यूज अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के हमें दोनों यूजेस के डायग्राम याद होने चाहिए। ओके, तो कैसे बनाते हैं हम? फॉर लेट्स से हम एक ईएमएफ वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या होगा, एक ड्राइविंग बैटरी होगी यहां पे, राइट। उसके बाद एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस केवल इसलिए यूज होती है कि हम ऑप्टिमल करंट फ्लो कर सकें सर्किट में। ये हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल होती है, ये केवल कंट्रोल करने के लिए है सर्किट को। एक की तो जरूर होनी ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है इसमें? इसके बाद जो है यहां पर हमारा वायर होता है, ठीक है ना। दिस इज आवर कांस्टेंट रेजिस्टेंस वायर। ओके, सर हाँ, सर दिख तो रहा नहीं। आपको दिख दिखा रहा रहा है? है। आपको क्या नहीं दिख रहा है? सर आपका फेस दिख रहा है, बस जो आप टॉपिक समझाना चाह रहे हो या जो क्वेश्चन अच्छा आप पूछ रहे हो वो अभी रुकिए। पता है क्या, आपने ना वो मेरे वीडियो पे स्विच कर दिया, इसलिए हो रहा है। मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ना वो आप कंट्रोल कर सकते हो। वो आपने ना मेरे वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को बड़ा कर दिया था, ठीक है ना। अभी मैंने ऑफ कर दिया, तो अब तो आपको स्क्रीन ही दिखेगी बस। यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। हाँ, लेकिन अगर टीचर का भी वीडियो ऑन है तो आप स्विच कर सकते हो वीडियो के बीच में और स्क्रीन के बीच में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलिंग सर्किट हो गया और ये हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस का वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं? ईएमएफ मेजर करना चाह रहे हैं। तो हम जो है, देखिए, अपने दोनों जो सेल्स हैं, सेल की पोलैरिटी का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। ये हमारा एक नोन सेल है जिसका ईएमएफ नोन है, और एक है जिसका ईएमएफ नोन नहीं है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारा एप्सिलॉन 1 है, इसका ईएमएफ, इसका एप्सिलॉन 2 है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव इस बैटरी का कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवर्स पोलैरिटी में है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम एक बॉक्स में टू वे स्विच में लगा देते हैं, और ये टू वे स्विच जाके यहाँ पे बैलेंस पे लग जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर तो होना ही चाहिए बीच में, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, राइट, टू मेजर द करंट। तो हम इसको मूव करके बैलेंस स्टेट लाते हैं, राइट।
सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने हाथ से केवल बुक में मत देखिए, राइट? और बुक में तो वैसे भी आपको वो जिस तरह से फिजिकली मल्टीपल वायर सिस्टम होता है उस तरह दिखाएंगे। आप ये सिंपल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाथ से बनाइए ताकि आपको आए ये बनाना, ठीक है ना? ये पूरा फंक्शनिंग समझ आ जाएगा जब हाथ से बनाएंगे। और इसमें हम ईएमएफ, एक तो नोन है, एक अननोन है, ठीक है? तो रेशियो ईएमएफ की और जो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ्स आते हैं वो रेशियो जो है कांस्टेंट होती है, यानी EMF1 by EMF2 is the balancing length of EMF1 by the balancing length of EMF2, ठीक है? तो जो भी अननोन वैल्यू है आप वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं। आई विल पॉसिबली स्किप दैट पार्ट फॉर नाउ, बट आपको दोनों यूजेस आने चाहिए। ओके, now let's try to move on and do a few questions also. Two wires of equal length, one of copper and another of manganese, have the same resistance. Which wire is thicker? हमें क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की ज्यादा होती है या मैंगनीज की? एनीबडी कैन टेल दैट कि कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है या मैंगनीज की? सर कॉपर की। कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा। कॉपर इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ। ओके, ऑब्वियसली गोल्ड हैज मोर कंडक्टिविटी, लेकिन कॉपर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट कंडक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ, ठीक है ना? तो कॉपर से तो बहुत ही कम मेटल्स हैं जिनकी ज्यादा होती है। ओके, और एलॉयज की तो कमी होती है उससे, ठीक है? तो मैंगनीज इज अ एलॉय, तो उसका जो रेजिस्टिविटी है ज्यादा है, यानी कंडक्टिविटी कम है। तो किसका वायर मोटा चाहिएगा? जिसकी कंडक्टिविटी कम है, राइट? फॉर द सेम रेजिस्टेंस द वायर शुड बी थिकर फॉर manganese. Which wire is thicker? Manganese wire is thicker. Look at this VI graph for parallel and series combination of two metallic resistors as shown in the figure. Which graph shows parallel combination? दो मेटालिक रेजिस्टर्स दिए गए हैं, एक बार एक केस में उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया। अब इनमें से कौन सी लाइन शो करती है कि वो पैरेलल में है, कौन सी शो करती है कि वो सीरीज में है? कैसे पता करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से नहीं है, राइट? कोई फॉर्मूले से नहीं हो रहा है डायरेक्ट। क्या लॉजिक लगा के करेंगे इसको? हमें वैल्यूज तो पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि रेजिस्टेंस, अगर दो मेरे पास रेजिस्टर्स हैं, एक बार सीरीज में जोड़ा, एक बार उनको पैरेलल में जोड़ा, तो उनकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, किस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, किस केस में रेजिस्टेंस कम होगी? पैरेलल वर्सेस सीरीज। सर सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी शायद। वो बढ़ती है, और इसका मतलब जो लाइन ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही है वो सीरीज है, जो कम रेजिस्टेंस शो कर रही है वो पैरेलल वाले की लाइन है, ठीक है?
तो अब बताइए इनमें से कौन ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है? तो सीरीज कर रहा है। हाँ हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा है, ए है या बी है? देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या होता है, V बाय आई, राइट? तो V बाय आई किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है या B का? V बाय आई इन दिस केस इज सिंपली द स्लोप, तो किसका स्लोप ज्यादा है? B जो है वो हायर स्लोप है, हायर स्लोप है मतलब हायर रेजिस्टेंस है इन दिस केस, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई है, V है जो y एक्सिस पे है, तो ये जो है ये हायर रेजिस्टेंस है, हायर रेजिस्टेंस है तो मतलब सीरीज है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये केवल कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 is given as shown. Which of the two temperatures is higher? ठीक है, क्या सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू V बाय आई होता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे तो I यहाँ है, V यहाँ पे है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं I बाय V। ठीक है ना, तो स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है लाइन का उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका स्लोप कम है। ठीक है, अब बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? हाँ बोलिए सर। जैसे आपने जो पिछला वाला ग्राफ था उसमें बताया था कि जैसे VR लिखा था आपने, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, क्योंकि उसमें वो आ रहा था, आपने बताया कि B इक्वल टू आई आर है, तो B वाला रेजिस्टेंस ज्यादा था, ये वाला। तो इसमें ये जो T1 और T2 आपने दे रखे हैं, तो इसमें आपने ये दे रखा है कि उसमें कौन सा ज्यादा होगा, मतलब ये तो ये जो डिपेंड कर रहा है तो VR पे डिपेंड कर रहा था, और ये जो टी वाला दे रखा है ये किस पे डिपेंड करेगा फिर? हाँ, पहले तो आप ये बताइए मुझे कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है इन केस ऑफ मेटल। मेटल में हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि जिस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस ज्यादा है वो टेम्परेचर हायर है, राइट? तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वो टेम्परेचर हायर है। अब हमें ये देखना है इसमें से रेजिस्टेंस कौन से स्लोप कौन से की ज्यादा है। ठीक है ना, इसका स्लोप हायर है, इसका स्लोप लेसर है, जिसका स्लोप ये स्लोप है। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या डाली है मैंने, ट्रिक ये कर दी है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रखे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि पहले में VI कैरेक्टरिस्टिक थी, यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक बना दी है। तो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है। तो अब स्लोप क्या हो गया, I बाय V, यानी 1 बाय R है स्लोप। यानी हम अगर R ज्यादा है तो स्लोप कम होगा, R ज्यादा है स्लोप कम होगा, तो ये वो है जिसका R ज्यादा है, R ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। अंडरस्टूड? तो ये जो आपने बताया T2 है, इसका R ज्यादा है तो इसका स्लोप कम है, वो ज्यादा है, तो ये आपने कैसे डिसाइड करा है सर? हाँ देखिए, हमने यहाँ पे वैसे अगर बीच में वीडियो खत्म हो जाता है तो आई विल एक्सप्लेन टुमारो। ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ये इस बेसिस पे कि अगर इसका ये जो I बाय R है वो क्या है, I बाय V। स्लोप क्या होता है, Y बाय X होता है ना स्लोप तो हमेशा ही, और Y क्या है, I है, ये V है, तो I बाय B क्या होता है, 1 बाय R।
तो जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी ना स्लोप की और रेजिस्टेंस की। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार अपने आप एक बार अब देखिए, ये स्लोप समझ आ गया आपको, I/V स्लोप है, Y/X सर ये स्लोप